العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام میرے پیارے بھائیوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم نعمان بھائی کے گھر میں حاضر ہیں ان کی محبتیں ہیں ماشاءاللہ اور نبی کریم علیہ السلام سے گہری محبت کا اظہار ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں میرے آقا علیہ السلام کا جو میلاد کا موضوع ہے اس کے اندر بہت سارے عنوان ہیں اس میں سے کچھ برکت کے لیے سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اختیار دیے ہیں اور کیسا ہمارے آقا کو با کمال بنایا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے مثل بنایا بے مثال بنایا ایسا کمال والا بنایا ایسا جمال والا بنایا کہ اس کی کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں کسی نے کہا نا کہ رب نے بنایا نہ سونا تیرے نال دا رب نے بنایا نہ سونا تیرے نال دا لب کے لے آما کتوں آقا تیرے نال دا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے مثل بنایا بے مثال بنایا قیامت کے دن ایک گناہگار شخص کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کہ اس بندے نے دنیا میں گناہ کیے ہیں میری نافرمانیاں کی ہیں اس بندے کو پکڑو فرشتوں اس کو دوزخ میں ڈالو فرشتوں جو ہے فرشتوں کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے وہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں سوتے نہیں ہیں وہ ہماری طرح ان کو کوئی پریشانیاں نہیں ہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں وہ صرف اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں نہ نیند آتی ہے نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں نہ ان کے بچے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں بس اور کوئی کام نہیں ہے ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے اللہ کی عبادت اللہ کا حکم پورا کرنا اب فرشتوں سے عرض کیا کہ فرشتوں سے فرمایا گیا کیا فرشتوں اس بندے نے زندگی میں گناہ کیے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس کو پکڑو اور جاؤ دوزخ میں ڈالو اب اس بندے کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ آگے ہمارے رحمت والے آقا غم امت کے غم میں رونے والے آقا بے کسوں کے مددگار شافعی روز شمار احمد مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرا ایک امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے حضور فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں ٹھہرو اس میرے امتی کو کہاں لے کے جا رہے ہو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے اس کے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی اللہ کا حکم ملا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے اللہ اکبر ہمارے کریم آقا امت کے غم میں رونے والے آقا
उम्मत के गम में बेकरार रहने वाले आका हजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि फरिश्तों रुको जरा, ठहरो जरा, इसका नामा माल जरा दोबारा तो तोल के दिखाओ। फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है और हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, क्या फरिश्तों आज वही करो जो मेरा महबूब कहता है। दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐ फरिश्तों आज वही करो जो मेरा महबूब कहता है। अब उसका नामा बाल तोला जाएगा, दोबारा से तोला जाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक कागज का रुक्का, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके नेकियों के पलड़े में रख देंगे। नेकियां तोली जाएंगी तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब अल्लाह का हुक्म मिलेगा कि ऐ फरिश्तों अब इस बंदे को जन्नत में छोड़ कर आओ। अब दोज़ख नहीं है, अब इसका ठिकाना जन्नत है। अब मेरे प्यारे भाइयों, वो शख्स कि जिसको दोज़ख का आर्डर मिल चुका, उसको दोज़ख से जन्नत की तरफ जाना पड़ रहा है, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। कितना वो खुश होगा। वो करीम आका की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि हुजूर आप मेरे नामाए बाल में आपने रखा क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, इसका मफ़हूम और खुलासा है कि दुनिया में रहते हुए तूने प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से मुझ पर दरूद पढ़ा था। ऐ मेरे उम्मती आज उसी दरूद का सवाब तेरे नेकियों के पलड़े में रख दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, दरूद जो है ये कोई छोटी इबादत नहीं है। दरूद जो है ये मकबूल ही मकबूल है, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। तो इसलिए दरूद पाक पढ़ने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते जब जब याद आ जाए। हम साथ अगर कोई काम कर रहे हैं तो इश्क वाले तो बात करते हैं कि कहते हैं कि हाथ कारवाल, जो हम काम कर रहे हैं हाथ कारवाल ते दिल यारवाल। जो दिल की तार है वो हमारे नबी से कांटेक्ट रहे, उसका राब्ता जो है वो मिला रहे और दरूद पाक ज़बान पर चलता रहे। तो इंशाअल्लाह रहमान दरूद पाक की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बरकतें हमारा मुकद्दर बनेगी, दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरे प्यारे भाइयों, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना है। हम अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे सवालात भी आते हैं। अब कुछ फ़ज़ाइल और कुछ सवाल जो तनकीदी सवाल होते हैं उन पर भी कुछ कलाम हम करते हैं। कुछ लोग ये सवाल एतराज़ करते हैं कि जी मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। कुछ लोग कहते हैं जी बिदअत है, कुछ कहते हैं जी शिरक है। ये तीन सवाल तो बड़े कॉमन हैं। एक कहते हैं कि मनाना कहाँ लिखा है, दूसरा कहते हैं कि ये शिरक है और तीसरा कहते हैं बिदअत है। इसके बारे में मेरे प्यारे भाइयों हम सुनते हैं। अच्छा, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहाँ लिखा है, इसको थोड़ा हम ज़रा समझें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसका मफ़हूम और खुलासा है कि जब ईमान वालों तुम्हें कोई फजल मिले तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह पाक का सबसे बड़ा फजल तो है मेरे आका अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने बनाया रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की शान है कि वो रब्बुल आलमीन, रब सारे जहान वालों का रब। अल्लाह सारे जहान वालों का रब, वो सातों आसमानों के ऊपर वालों का भी रब, वो सातों ज़मीनों के नीचे वालों का भी रब, वो इंसानों का भी रब, वो जिन्नों का भी रब, वो फरिश्तों का भी रब, वो हवानात का, वो शजरात का, वो नबातात का, वो ज़मीनों का, वो आसमानों का, वो सितारों का, वो हर चीज़ का रब, हर चीज़ को पालने वाला, हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का मालिक। जिसका अल्लाह रब है उसी के लिए फरमाया गया कि रहमतुल लिल आलमीन। मेरा महबूब, मेरा नबी, जिसका मैं रब हूँ उसका मेरा नबी उसके लिए रहमत है। मेरे आका की शान अल्लाह ने क्या बयान फरमाई कि मेरा महबूब ये सारे आलमीन के लिए, सारे जहान वालों के लिए ये रहमत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए,
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। तो अल्लाह पाक का जो सबसे बड़ा फजल है वो हमारे नबी की ज़ात है, वो हमारे नबी का मर्तबा और मकाम है। तो ये कुरान पाक में ये फरमाया गया। अच्छा, जो कहते हैं कि शिर्क है, इसको जरा हम सुने। शिर्क कहते हैं कि किसी को खुदा समझना या खुदा के बराबर किसी को समझना, या किसी को इस काबिल समझना कि उसकी उसको इबादत के लायक जानना, किसी को खुदा समझना, किसी को खुदा की तरह इबादत उसका मबूद समझना, किसी को अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, इसको कहा जाता है शिर्क। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह, इसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की शान है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की शान ये है कि वो अकेला है, अल्लाह की ना माँ है, अल्लाह का ना बाप है, ना अल्लाह की बेटी है, ना अल्लाह का बेटा है, वो बेनियाज है, कोई उस जैसा नहीं है। ये सूरह इखलास का तर्जुमा और मफहूम मैंने रखा आपके सामने। अल्लाह वो है कि जिसकी माँ भी नहीं है, जिसका बाप भी नहीं है, जिसकी बेटी भी नहीं है, जिसका बेटा भी नहीं है, वो अकेला है, वो बेनियाज है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ये है अल्लाह। अल्लाह वो है जो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह वो है जो फौत नहीं होगा, अल्लाह अज़ली है, अल्लाह अबदी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैदा हुए। मिलाद का मतलब है पैदाइश का दिन, पैदाइश का वक़्त। जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कि मेरे सालगिरह है, मेरे बच्चे की सालगिरह है, अंग्रेजी में कहते हैं बर्थडे है। इसी तरह अरबी ज़बान में कहते हैं मिलाद। मिलाद का मतलब है पैदा होने का वक़्त। जिस वक़्त हजूर पैदा हुए उस वक़्त की बात करना, हजूर की पैदाइश की बात करना, जब हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उस दुनिया में आने की बात करना, इसको कहते हैं मिलाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ा शिर्क का तोड़ तो मिलाद ही है। अल्लाह तो वो है कि जो पैदा नहीं हुआ और हमारे नबी वो है जो पैदा हुए। तो भाई शिर्क कैसे हो गया? हम तो बात ही वो कर रहे हैं कि जो पैदा हुआ, हम पैदा होने वाले की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह की शान तो है कि वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जिसको इंतकाल हुआ, जो इस दुनिया में ज़ाहिर तौर पर आए भी और दुनिया से गए भी। और अल्लाह की शान क्या है कि वो पैदा भी नहीं हुआ और मरेगा भी नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ये शिर्क नहीं है। मेरे नबी का मिलाद मनाना शिर्क नहीं है। मिलाद का तो मतलब ही है कि पैदाइश के वक़्त की बात करना। तो जो पैदा होता है वो अल्लाह नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि जी कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा, सहाबा ने तो मिलाद नहीं मनाया था। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा ने, अच्छा कुछ कहते हैं बिदअत है। अच्छा, बिदअत की तारीफ क्या है, इसको भी सुनते हैं। बिदअत का मतलब है वो काम जो हमारे नबी ने नहीं किया, उस काम को करना, वो बिदअत कहलाता है। इस बात को समझ आ रही है आपको? बिदअत कहते हैं कि जो काम हमारे नबी ने नहीं किया और हमारे नबी के सामने किसी सहाबी ने भी नहीं किया। जो काम हजूर ने नहीं किया, हजूर के सामने किसी सहाबी ने नहीं किया, उसको करना, ये है बिदअत। ठीक है, बिदअत का समझ लग गई। अब बिदअत के दो किस्में, एक है अच्छी बिदअत, एक है बुरी बिदअत। ठीक है। तो अब दो बिदअतें हैं। अगर सरकार का मिलाद जिस तरह हम मनाते हैं, हम लाइटें लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, हम जनाब लंगर पकाते हैं, देगे पकाते हैं, नाते पढ़ते हैं, हजूर के जिक्र की बात करते हैं, तो ये बिदअत है। और अगर बिदअत यानी नया काम, जो काम हजूर ने नहीं किया वो काम करना गुनाह है। अगर ये असूल देखा जाए कि जो काम हजूर ने नहीं किया आज वो काम करेंगे तो गुनाह है, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों हम कुछ कर नहीं सकेंगे। मिसाल के तौर पर कोई साबित करे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सियों पर बैठे थे, साबित कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेज रखा था, कोई साबित कर।
मेरे आका अलैहिस्सलाम पंखे के नीचे बैठे थे, साबित करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम लैंटर के छत के नीचे बैठे थे, साबित करें। मेरे आका के घर में इस तरह के पर्दे थे, साबित करें। मेरे आका के दरवाज़ा इस तरह का था, साबित करें। मेरे आका के घर में बल्ब ऐसे थे, लाइटिंग ऐसी थी, साबित करें। मेरे आका उर्दू बोलते थे, साबित करें। मेरे आका जो बिरयानी है, जो कोरमा है, जो बर्गर है, जो शवारमा है,